ویلکم بیک۔ سب سے پہلے بات کریں پاکستان کے ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی نے ملک میں بدتمیزی کے کلچر کو متعارف کرایا، نوجوانوں کو گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے پر لگایا گیا۔ پی ٹی آئی حکومت کا ملک میں کوئی ایک منصوبہ دکھا دیں۔ معیشت کی بہتری کے لیے شہباز شریف نے بے پناہ اقدامات کیے۔ پاکستان کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے، پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ ہندوستان ٹیم پاکستان آتی کھیلتی، لیکن انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آ جائے گا وقت ایسا۔ وہ پہلے 1.5 ارب درخت کو یہ دکھائیں، پورا ملک دیکھنا چاہتا ہے وہ 1.5 ارب درخت ہے کہاں پہ، وہ 50 لاکھ نوکریاں کہاں پہ ہیں، وہ 300 ڈیم کہاں پہ ہیں، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک بتا دیں منصوبہ جس کا انہوں نے کوئی افتتاح کیا ہو۔ ہمارے تعلقات ہر ملک کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے۔ ہم نے کسی سے خراب تعلقات رکھتے کرنا کیا ہے بھائی؟ کسی ملک کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہوتا۔ عثمان ہے جو ہمارے دل کے بہت نزدیک ہے، غالباً کل پرسوں لیکن نا بات یہ ہے کہ تمیزی کا کلچر کی بنیاد ایسی پارٹی نے رکھی ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت ہی افسوسناک ہے، اور اس بدتمیزی کے کلچر کو انہوں نے اپنے حکومت کے دوران بھی پروموٹ کیا۔ تو یہ تو ہمارا نہ دین سکھاتا ہے، نہ مذہب سکھاتا ہے، نہ اسلام یہ بات سکھاتا ہے، نہ قرآن سکھاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے اسموک کا مسئلہ راتوں رات ملک میں حل نہیں ہو سکتا، اسموک کا مسئلہ جلد حل کریں گے۔ 6 سال بعد پاکستان میں دوبارہ ترقی آ رہی ہے، ایئر پنجاب سروس لانچ کرنی چاہیے، اس پر سوچ بچار چل رہی ہے۔ نواز شریف کی سابقہ حکومت کے بعد اب پہلی دفعہ مہنگائی میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ سے اچھی خبر آ رہی ہے، اکانومی بہتر ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں اس دن 96,000 کراس کیا ہے جو اسٹاک مارکیٹ ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ ایسا میرا خیال ہے کہ بہت ریاست کی پچھلی حکومت تھی، اس کے بعد اب 6-7 سال کے بعد اب یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور آپ نے پنجاب میں پروجیکٹس کی بات کی تو میرا خیال ہے کہ پنجاب میں پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے۔ یہاں محنت کرنے والے سنسیئر لوگ چاہیے، اسٹیبلٹی ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان مشکلات سے نکلتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، اور جلدی نکلے۔ ہم ہر وہ میجرز لے رہے ہیں، ہر وہ میجرز ہم لے رہے ہیں جو ہم لے سکتے ہیں۔ اسموک کا ایک مسئلہ ایسا ہے جو بہت سالوں سے ہے، اور اوور نائٹ اس کی کوئی کریکشن نہیں ہے، اوور نائٹ ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن ہم وہ تمام اقدامات اٹھا رہے ہیں جس سے آنے والے سالوں میں وہ کم ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ اس کو اس حد تک پہنچا دیا گیا کیونکہ کوئی کنسرن نہیں تھا اتنے سیریس ایشو کے اوپر۔ گاڑیوں کا جو پرانی گاڑیاں ہیں، ویکل ایمیشن ہے، اتنا سب کچھ کرنے والا ہے، اور ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کو تھوڑے چند سال لگیں گے لیکن یہ ہو جائے گا۔ جن اساتذہ کو پروموشن چاہیے وہ ہمارے ساتھ احتجاج میں شریک ہوں۔ وزیر تعلیم کے پی فیصل خان ترقی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ وزیر تعلیم فیصل خان ترقی اساتذہ کو کہتے ہیں جن اساتذہ کو اب گریڈیشن چاہیے، پیسے چاہیے، وہ ہمارے احتجاج میں ہمارے ساتھ نکلیں۔ 2 لاکھ اساتذہ پی ٹی آئی کی تحریک میں شامل ہوں گے تو ان کے مطالبات مان لیے جائیں گے۔ استادوں کو 2 لاکھ استاد ہیں، آئیں ہمارے ساتھ تحریک میں ملیں، وفاق کو جو ہمارے پیسے ہیں، ہم ہر ہفتے جلسہ کرتے ہیں، ہر ہفتے پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپ نکلیں، آپ کے پیسے چاہیے، آپ کو اپگریڈیشن پروموشن چاہیے، ہمارے احتجاج میں نکلیں، ہمارے ساتھ آواز اٹھائیں صوبے کے لیے۔ جو پیسے جو وفاق نے 1600-1700 روپے روک کے رکھے ہیں، ہم کوئی شوق تو نہیں ہے ہمیں کہ ہم یہ چیزیں نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس جو ہے نا پیسے ہیں لیکن ہم نہیں کرنا۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں COP29 کانفرنس کا آغاز۔ کانفرنس 22 نومبر تک جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی کانفرنس میں شرکت اور خطاب۔ کہتے ہیں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ باکو آذربائیجان میں COP29 کانفرنس کے موقع پر موسمیاتی تبدیلی اور گلیشیئر پگھلنے کی تقاریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستانی معیشت کو بڑا نقصان پہنچا، 2 بار بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا اور پاکستان اب تک سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے نہیں نکل سکا۔ In order to spur some transparency and coordination into the financial commitments made to developing countries under climate transfers, Pakistan alongside many other developing countries
वज़ीर आज़म का कहना था ग्लेशियर्स पीने के पानी का बहुत बड़ा जरिया है। पाकिस्तान ग्लेशियर से 90% पानी हासिल होता है। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना तशवीशनाक है। मुस्तकबिल में पानी के ज़खायर को महफूज बनाने के लिए ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। इंसानियत की बका ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत है। वज़ीर आज़म ने कहा तरक्की पज़ीर ममालिक को 2030 तक 6000 अरब डॉलर्स की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क के मुताबिक खुसूसी फंड्स मुख्तस करना होंगे। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए यूएन फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। स्मोग ने पंजाब की फजा में जहर भर दिया। शहर शहर काले धुएं के बादल, सांस लेना महाल हो गया। स्मोग की अबतर सूरत हाल के बायस पंजाब के मजीद 5 डिवीजन्स में स्कूल बंद कर दिए गए। पंजाब भर में स्मोग के डेरे लाहौर 635 से QI के साथ आज पहले नंबर पर आ गया। मुल्तान, डीजी खान, साहिवाल, सरगोधा, बहावलपुर और रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी फिजाई आलूदगी की सूरत हाल बेहतर न हो सकी। जहरीली स्मोग के पेश नजर पंजाब भर के स्कूल बंद कर दिए गए। डीजी खान, साहिवाल, सरगोधा, बहावलपुर और रावलपिंडी डिवीजन में कल से 17 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का एक्शन। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने पिम्स अस्पताल के तिब्बी फुजला जलाने वाली चिमनी को बंद करवा दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मोग के खात्मे के लिए शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई। वजीर आला मरियम नवाज खुद कारकर्दगी की मॉनिटरिंग कर रही हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान को कराची आने की दावत दे डाली। कहा सिंध में मुल्क भर में सबसे कम एयर क्वालिटी इंडेक्स 78 सिंध में है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोग से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि कोई हुक्म जारी नहीं करेंगे, सब कुछ हुकूमत पर छोड़ते हैं। अदालत ने कार्रवाई 16 नवंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर धुंध और स्मोक का राज बरकरार। हद निगाह सिफर होने के बाद मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना, मोटरवे M3 फैजपुर, M2 M3 जंक्शन, M5 रोहड़ीता रहीम जरखान इंटरचेंज, N5 ठोकर न्याज बेग ता सामपाल चौक, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक धुंध और स्मोक की वजह से बंद कर दी गई हैं। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। मुसाफिर दिन के औकात में सफ़र करने को तरजीह दें। आपको बताएं कि स्मोक और धुंध के बायस मोटरवेज बंद कर दी गई हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर धुंध और स्मोक का राज बरकरार है। हद निगाह सिफर होने के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है सिंध हुकूमत को प्रमोट करने में अपना किरदार अदा कर रही है। सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक आगे बढ़ रही है। सिंध में सैलाब से 30 लाख खानदान बेघर हो गए थे। पाकिस्तान को इस वक्त चैलेंजेस का सामना है। मौसमियाती तब्दीलियों से सिंध का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कोशिश है कि नई नस्ल के लिए बेहतर मुल्क और सूबा छोड़ कर जाएं। हुकूमत ने फैसला किया कि सैलाब मुतासरीन को घर बना कर देंगे। हमारे 20 लाख से ऊपर लोग बेघर हो गए, खानदान लोग नहीं। क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उनके विजन के मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आपके लिए एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर मुल्क, एक बेहतर सूबा छोड़ के जाएं और फिर आगे फ्यूचर आप हैं तो आपने इंशाल्लाह ताला उसको लेके आगे चलना है। बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफी आई थी, सैलाब आया था, उसके अंदर तकरीबन 1/3 बल्कि 2/3 के करीब हमारा सूबा पानी के अंदर था। हुकूमत सिंध ने ये फैसला किया कि हम ये घर दोबारा बनाएंगे अपने लोगों के लिए। 27 लाख पाकिस्तानियों का नादरा से रिकॉर्ड चोरी। चेयरमैन नादरा का इतराफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में दौरान चेयरमैन नादरा की ब्रीफिंग। चेयरमैन नादरा ने कहा विफाकी हुकूमत का चेयरमैन और बोर्ड की तैनाती के अलावा कोई अमल दखल नहीं। नादरा की तमाम तैनातियां नादरा हुकाम करते हैं। नादरा के अंदर कई ऐसी तैनातियां हुई जो एडवर्टाइज नहीं हुई। बहुत से अफसरान ने अपनी डिग्रियां बाद में मुकम्मल की। हमारा बजट 57 अरब जिसका 87% तनख्वाहों में जाता है। जरताज गुल बयान पर हैरान। कहा निगरान हुकूमतों ने तैनातियां कैसे की? जिन अफसरान को नादरा से निकाला गया क्या सिक्योरिटी वजूहात थी? अफसरान के कौन सी डिग्रियों के इश्यूज थे? 53 अरब रुपए रेवेन्यू से अखराजात हैं तो हमें बताया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहला 6 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। आईनी बेंच 14 नवंबर से समाअत का आगाज करेगा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए।
26वीं आईनी तरमीम के बाद पहला आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया। 6 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। बेंच 14 नवंबर 9:30 बजे आईनी केसेस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने केसेस की समाअत के लिए रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल, जस्टिस मोहम्मद अली और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस आयशा मलिक 14 और 15 नवंबर आईनी बेंचेस के लिए दस्तयाब न होने पर जजेस कमेटी ने दस्तयाब 6 जजेस पर आईनी बेंच तश्कील देने का फैसला किया। इससे पहले आईनी बेंच से मुतालिक जजेस कमेटी का इजलास जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखिल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने बजरिया टेलीफोन इजलास में शिरकत की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान ने जजेस कमेटी को आईनी मुकदमात पर ब्रीफिंग दी। चाहते हैं पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात की दोस्ती आगे बढ़े। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी कहते हैं यूएई की क़यादत के पास विजन, मेहनत और लगन है। यूएई ने रेगिस्तान में भी इमारतें खड़ी करके दिखाई हैं। चाहता हूँ हमारे मजदूर का अपना घर और गाड़ी हो। बतौर गवर्नर सिंध ताउन की यकीन दहानी कराता हूँ। उम्मीद है मौजूदा हुकूमत मजदूरों को मायूस नहीं करेगी। यूएई उनकी लीडरशिप ने जब चाहा कि मेहनत करनी है और एक रेगिस्तान से बिल्डिंगों की एक बुनियाद खड़ी करनी है तो यूएई ने करके दिखाया है। इनके पास विजन है, लगन है, मेहनत है। मैं भी चाहता हूं कि मेरा हर मजदूर अपनी गाड़ी का मालिक हो, अपने घर का मालिक हो। मुझे ये उम्मीद है कि एडी पोर्ट पाकिस्तान की मईशत में अपना किरदार अदा करेगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में इजाफा होगा, क्वालिटी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगी, सर्विसेज बेहतरीन होंगी। यूएई वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से पीपल्स लॉयर्स फोरम के अहदेदारान और अरकीन की मुलाकात हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान का वकला से सूबे की मजमूई सियासी और समाजी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। पीपल्स लॉयर्स फोरम की फालियत इत्तेहाद व इत्तेफाक के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की पीपल्स लॉयर्स फोरम के अहदेदारान और अरकीन से बातचीत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए वकला समेत तमाम तबकात को अपना किरदार अदा करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ फौज या सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, हर फर्द की जंग है। आइंदा की नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। बलूचिस्तान में गुड गवर्नेंस के क़याम के लिए कोशिश हैं। अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए वकला मुतहरिक किरदार अदा करें। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं सूबाई हुकूमत ने स्मोक के खात्मे और माहौलियाती बेहतरी के लिए पहली बार 10 साला शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई है। मरियम औरंगजेब का कहना है पहली दफ़ा मुल्क में व्हीकल रजिस्ट्रेशन रेजीम मुतारफ करवाई गई है। स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब की एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया गया है। पहली दफ़ा पंजाब में पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल की क्वालिटी की चेकिंग हो रही है। पहली दफ़ा कवानीन में तब्दीली करके स्मोक के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। मोंजी और फसलों की बाकियात जलाने का मुकम्मल खात्मा होगा। अदालत का शुक्रिया कि साबिक हुकूमतों के मुकाबले में मरियम नवाज शरीफ हुकूमत के अच्छे कामों का एतराफ़ किया। ई-पे पंजाब के जरिए सूबाई हुकूमत को 600 अरब रुपए से ज़ायद रिकॉर्ड रेवेन्यू वसूल हो चुका है, जबकि मोबाइल ऐप पर शहरियों की जानिब से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 6 करोड़ 94 लाख से तजावुज़ कर गई हैं। चेयरमैन पीटीआई बी फैसल यूसुफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में बताया गया कि ई-पे पंजाब के जरिए पंजाब हुकूमत को 600 अरब रुपए से ज़ायद रिकॉर्ड रेवेन्यू वसूल हो चुका है। चेयरमैन फैसल यूसुफ का कहना था कि सिर्फ 5 बरस में हासिल होने वाला रिकॉर्ड रेवेन्यू ई-पे पंजाब पर शहरियों के एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। ई-पे से अब तक हुकूमत को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सेल्स टैक्स की मद में 417 अरब रुपए वसूल हुआ है, जबकि टोकन टैक्स की मद में 20 अरब, ट्रैफिक चालान की मद में 15 अरब, प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 36 अरब से ज़ायद और ऑनलाइन गाड़ियों की ट्रांसफ़र की मद में पंजाब हुकूमत को 9 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स रेवेन्यू हासिल हुआ है। पाकिस्तान के मारूफ तरीन ब्रांड जे डॉट फ्रेगरेंसेस ने दुबई ब्यूटी वर्ल्ड 2024 में लग्जरी पैकेजिंग का अवार्ड जीत लिया। जे डॉट फ्रेगरेंसेस, जो कि पाकिस्तान का मारूफ तरीन ब्रांड ने है, दुबई में होने वाली दुबई ब्यूटी वर्ल्ड 2024 में लग्जरी पैकेजिंग का अवार्ड जीतकर पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। जे डॉट फ्रेगरेंसेस को यह अवार्ड लग्जरी पैकेजिंग ऑफ द ईयर उनकी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग पर दिया गया है। इवेंट में दुनिया भर के मुख्तलिफ ब्रांड्स की अशिया रखी गई थी।
ایم ڈی سالڈ ویسٹ کا کہنا ہے کہ کراچی ضلع بستی کے ہر زون میں ہر ہفتے کسی تعلیمی ادارے میں صفائی ستھرائی اور کچرے کو محفوظ طریقے سے پھینکنے کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جائے گی. سوشل موبلائزر اور کمپنی کے اہلکاروں کے ذریعے آگاہی کے لیے پیلے سٹیکر لگانے اور پمفلٹ تقسیم کرنے کا کام جاری ہے. مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سید امتیاز علی شاہ کی زیر صدارت صفائی ستھرائی کی بہتری اور آگاہی کے سلسلے میں اجلاس منعقد ہوا. ایم ڈی سالڈ ویسٹ کی ہدایت پر عارضی کچرا کنڈیوں کے خاتمے کے لیے PCTS اسٹیشن لگائے جائیں گے. انہوں نے ہدایت کی ہر زون میں ایک ماڈل جوسی بنائی جائے جس کے لیے تربیت یافتہ سینیٹری ورکرز بھرتی کیے جائیں گے اور ان کے لیے شیلٹر ہوم، ٹرانسپورٹ، کھانا اور سرکاری نرخ کے مطابق تنخواہ مختص کی جائے گی تاکہ سینیٹری ورکرز ہر وقت موجود رہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.